हेलो एंड वेलकम टू श्रीराम्स IAS। आप सबका स्वागत है एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट मनरेगा एंड द recent most update about मनरेगा. Why so? Because its name is about to get changed and the number of days which we used to have in मनरेगा for workers will be increased by 50 more days, and now workers will have a right to employment of 150 days. Now this is significant because we all know that मनरेगा एक ऐसा स्कीम है which is one of the largest in the world. It covers maximum of the population, brings out or elevates the population out of poverty and gives at least a substantial amount so that the rural India can survive. That is one thing which makes मनरेगा most important in its nature. Now let's discuss all the things which are associated to मनरेगा in the past and what will be its name in the future. In the next 10 minutes we will be going through all these features and we will be covering all these features in next 10 minutes. So be with me, focused, and make some running notes. Now the context is that this scheme, being the first right-based scheme providing employment rights to the people of India, has been a landmark in its own nature. Further, we need to understand that this scheme has been so much significant and now has to be expanded. And 2025 में जो reforms suggest किए जा रहे हैं, जो आने वाले हैं, first is its name will be changed to पूज्य बापू Rural Employment Guarantee Act. First. Second, the number of work days will be increased. The transparency of the scheme will be increased. That is, the social audit part of it will be increased. But before we go into reforms, I just want to make sure that you have a know-how of what all does the मनरेगा come along with. First, let's understand its provisions. The first provision of the scheme is the eligibility. Who are eligible to have a right to employment? ठीक है? All the people in India who are citizens of India and have age of 18 plus belong to rural areas can have an unskilled labor or provide unskilled labor and then contribute in the projects which are I would say funded under this scheme मनरेगा. One thing clear? Second, it provides employment guarantee of 100 days of work. That is minimum every person who is enrolled in मनरेगा with a job card. They do provide a job card to all those people, all those laborers who are in मनरेगा. Once they have these registered and then they get job card, now they are guaranteed with 100 days of mandatory and statutory right to employment. मतलब 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा और कोई सोल्यूशन नहीं है इसका. 100 दिन का काम मिलेगा और अगर काम नहीं मिला तो अलायंसेस मिलेंगे. कितने अलायंसेस मिलेंगे? इफ द वर्क वाज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज देन 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड 1/2 आफ्टर 30 डेज विल बी गिवन इफ देयर इज नो वर्क. अंडरस्टूड? वन सेकेंड. टोटल कितना काम मिलेगा? पूरे साल में 100 डेज का काम मिलेगा. ठीक है? एंड जब आपको पता हो दैट हाउ वी मेजर द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया अंडर यूजुअल स्टेटस, more than 182 days or we can say majority or major part of the year the person was employed into some of the work. That is where this comes in and it makes a figure कि अगर इस इंसान को अब 80 दिन का और काम मिल गया, majority part of the year was covered under employment, that person will be covered as employed for majority of the part of year. Understood? Now, local planning. The projects under मनरेगा are actually planned in Panchayati Raj institutions at the local level as per the needs of ground level. Rural areas में एक छोटा सा pathway बनाना है या कहीं पे नदी नाले का कंस्ट्रक्शन करना है या कहीं पे पॉन्ड बनाना है, लेक बनाना है, स्कूल के अंदर वाटर टैंक बनाना है, ये लोकल लेवल पे ही पता होगा. इसके लिए हमें नेशनल लेवल पे प्लानिंग नहीं करनी है, लोकल लेवल से प्लान बन के आना चाहिए. सो देयरफॉर मनरेगा प्रोवाइड्स अ
bottom up approach. Understood? Why am I emphasizing this much on this? क्योंकि ऑलरेडी मेंस में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है मनरेगा के ऊपर. दैट इज वाई इसके कोर प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट है और इसका करंट डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? इट प्रोवाइड्स वर्कर प्रोटेक्शन एंड राइट्स. वर्कर्स आइडियली गेट वर्क विद इन 15 kilometers of the radius. Beyond this distance, if worker gets work beyond the distance of 5 kilometers, they have to get compensation and travel allowances. Complaints of Manrega are solved within 7 days. Under the section 17 of Manrega Act, it mandates that there should be social audits, regular social audits of all the Manrega projects should be there. One more thing which you need to remember, that payments are made weekly, maximum 15 days for wage disbursement. Delay compensation is mandatory कि अगर काम में और पैसे मिलने में डिले हो गया तो उसके लिए भी compensation दे दिया जाएगा. Understood? Manrega till now has achieved numbers which other schemes are finding difficult to achieve. Like 15 million people or 15 million has been the daily participation of laborers, workers across 1.4 million work sites. ठीक है, 1.4 million work sites में 15 million workers have contributed $31 billion. The percentage, 31 billion percentage have been created since 2006. That is the inception. मनरेगा एक्ट जो है 2005 में आया था, तब से लेके आज तक 31 billion percentage have been created. 11.74 total expenditure and 30 million plus assets built for water conservation structures. पर विलेज 50 ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं. किस लिए? वाटर कंजर्वेशन के लिए. Now understand that much impact this scheme has already created in the India's development, particularly rural development. ठीक है. This scheme also has witnessed multiple reforms जो अभी recently आए हैं, जैसे ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम ताकि इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाए अच्छे से. जियो टैगिंग, हर एक प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसको जियो टैग किया जाता है ताकि जीआईएस के साथ जियो टैग, इसलिए वो प्रोजेक्ट बन गया, उसकी फोटो आ गई, उसका लोकेशन आ गया पिन पॉइंट करके, ताकि अच्छे से ट्रैक किया जाए और ऑडिट सही से हो जाए. आधार पेमेंट्स, डायरेक्टली पेमेंट जाता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, लेबर के अकाउंट में. प्लस एनएमएमएस ऐप है जो डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी है जनवरी 2023 से लेके उसके बाद से डिजिटल अटेंडेंस मैंडेटरी है फॉर लेबरर्स. अंडरस्टूड? ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट लाइवलीहुड के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एंड सोशल इंक्लूजन के लिए. इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द एंटायर रूरल लैंडस्केप. एंड वी नो दैट जलपाईगुड़ी में द I would say the culture of cultivating integrated vegetables has helped a lot. Southwest Khasi district में community built suspension bridges. पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में पोल्ट्री शेड्स. These have been some of the things जो कि केस स्टडीज हैं, सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं मनरेगा के अंदर, और ये केस स्टडीज हम एज इट इज कोट कर सकते हैं कहाँ पे? अपने मेंस के आंसर्स में. मैंने इनको बहुत शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट हाउ दे एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दी रूरल डेवलपमेंट. ठीक है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक नोट बना लेना है यहाँ पे, ये केस स्टडीज को याद रखना है और इनको मेंस के आंसर्स में लिख के आना है. डन. इट इज येट I would say has challenges मनरेगा, because if you see ये मनरेगा एक्ट, इसमें it is not just that a worker is working in a rural area and उसने सुबह से लेकर शाम तक काम किया, अपना अटेंडेंस नोट किया और उसके पास फंडिंग आ गया. नहीं, it goes through, the funding goes through a large or I would say long hierarchical bureaucratic list. जहाँ से फंडिंग टॉप से रिलीज होती है, आई वुड से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलीज होती है, और उसके बाद वो आते आते ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते उसके बाद जो वो काम करवा रहा है, जिसके पास वो मनरेगा का ठेका है, उसके पास जो लेबर्स है, नाउ इज ही एक्चुअली यूजिंग द लेबर्स ओनली और ही इज यूजिंग द मशीन्स? इज ही एक्चुअली पेइंग देम एग्जैक्टली द सेम अमाउंट विच गवर्नमेंट इज गिविंग? ठीक है, 125 रुपीज़ पर डे और 150 रुपीज़ 250 रुपीज़ पर डे, जितना भी पैसा आ रहा है, क्या वो पैसा एज इट इज जा रहा है लेबर के पास या नहीं? लीकेजेस कितनी है सब्सिडीज में? और आधार एनरोलमेंट क्यों जरूरी है? These all are the challenges, whether that is corruption, leakage, coverage, delayed wages and technological gaps. We witnessed or we saw that there has been technological integration into Manrega, but there are lack or there are, I would say,
जो अटेंडेंस और जियो टैगिंग है वो हो रही है, बट नॉट एट द लार्ज स्केल। ठीक है, लैक्यूनाज है, टेक्नोलॉजिकल लैक्यूनाज है, करप्शन है, लीकेजेस है, जिसकी वजह से मनरेगा हैज नॉट बीन दैट मच सक्सेसफुल। बहुत सारे फंड्स हैं जो पेंडिंग है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्लेम है कि अभी तक हमारे फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं अंडर मनरेगा। देयरफॉर नाउ 2025-26 के बाद से मनरेगा का नाम चेंज होने वाला है और इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने वाले हैं। जैसे पहले नाम चेंज करके इसको रखा जाएगा पूज्य बापू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सेकंड, इंक्रीज्ड वर्क डेज, क्योंकि अभी तक 100 वर्क डेज होते थे, अब 125 या 150 वर्क डेज, इट इज येट टू बी अंडरस्टूड। कैबिनेट में जो प्रपोजल गया हो उसमें 125 लिखा हुआ था। इट विल एनहांस द ट्रांसपेरेंसी, मैंडेटरी सोशल ऑडिट्स होंगे हर 6 महीने में। सोशल ऑडिट्स हमने देखा पहले भी इसमें मेंशन्ड है, सोशल ऑडिट्स मैंडेटरीली होंगे ही होंगे। हाँ, करंटली मनरेगा हैज अ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कुछ एरियाज में SC STs में, फॉरेस्ट एरियाज में 150 डेज का गारंटी ऑलरेडी मिलता है। कहीं पे अगर आई वुड से आपातकालीन स्थिति आ गई, कहीं पे एपिडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया, कहीं पे ड्रॉट आ गया, लैंडस्लाइड हो गया, तब जाके ये नंबर ऑफ डेज जो है ये इंक्रीज भी होते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। 50 दिन एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं वहां पे, ताकि उन लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिल जाए। अंडरस्टूड। नाउ लास्टली, इफ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन इन मेंस, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये एक परसिस्टेंट इशू है एम्प्लॉयमेंट का, और इस क्वेश्चन को आंसर करते टाइम मुझे लास्ट में वे फॉरवर्ड मेंशन करना जरूरी है। तो वे फॉरवर्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड ऑफ अर्बन मनरेगा एंड दैट वाज डिमांडेड इन द कोविड एरा। ठीक है, और पोस्ट कोविड एरा में भी ये चीज डिमांड की गई थी दैट अर्बन एरियाज के लिए मनरेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना जरूरी है फॉर लो स्किल्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड, दैट इट मीन्स और इट इज I would say at this point of time a crucial time to integrate मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना। इन सारी स्कीम्स को अगर हम इंटीग्रेट कर लें तो आवास योजना के अंदर जो घर बन रहे हैं उसमें वही लोग काम करेंगे जो मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। इफ वी इंटीग्रेट ऑल ऑफ दीज स्कीम्स, दिस विल बी समथिंग विच विल बी मोस्ट यूनिक सजेशन विच यू विल प्रोवाइड इन योर आंसर, और यहां से आपके नंबर आएंगे। अंडरस्टूड। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल इंप्रूव ग्रीवांस पोर्टल्स, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज प्रपोज 5.23 लाख करोड़ का आउटले फॉर दिस मनरेगा फ्रॉम 2026 टू 2030। अगर ये पैसा जा रहा है मार्केट में और ये पैसा जा रहा है हमारी डेमोग्राफी के पास, हमारे अकाउंट होल्डर्स के पास, मतलब हमारे ही लोगों के पास जा रहा है ना ये पैसा, ओनली बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स, रेम्यूनरेशन मिल रहा है ये। नाउ अंडरस्टैंड, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितना भी पैसा मार्केट में जाएगा, दिस विल हैव द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर आपको नहीं पता है तो एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लेना, 12th क्लास की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मनरेगा remains India's most ambitious social program, and yes, it remains the most important topic for UPSC also, because employment is one of the most important topics which has been repeated multiple times in mains and prelims also. With this, we conclude today's discussion. I wish you all the best. Thank you for being here. Jai Hind.